भारत माता की. Which is going to the announce the class name is class third, the section name is Ratan Tata, and the third rank holder from the class third, the student name is Muskan Yadav. So clapping for this Muskan, a brilliant girl, class third, Ratan Tata. So clapping for these students, and all the students please come on the stage along with your class teachers, and like this I am requesting to Honorable MLA sir, please come on the stage for give the certificates and medals for our students. And this is the proudable moment for the parents of Muskan, Drishti and Ram Shankar. Congratulations students. Yes, the parents of Ram Shankar is present with us, so please come on the stage. And one more time, congratulations to you sir. Like the last session, you is still at the first position. Remember, every grade, every comment and every achievement is a stepping stone to success. Keep shining and never give up. You are not just the students, you are the leaders, innovators and game changers. So believe in yourself and you will achieve greatness. I would like to call the parents of Drishti Sana and Muskan Yadav. Please come on the stage. Congratulations to you. Part of a person you are helping shape. Remember, every child learns at their own pace. Every child has their own strengths and weaknesses. I would like to call parents of class 3rd MP, Bobby Sakhe, Aradhyam and Umesh. If parents of these students are present here, so please come on the stage to appreciate their child. Congratulations to all the present. If parents of Anika Singh, Akshay Pratap Singh and Anshika Kumari is present here, so please. For Rupesh, a brilliant boy of my class. Second rank holder, name is? The student name is Samarth Maurya, and first rank holder from class 5th, the section name is Ravindranath Tagore. The student name is Raghav Bhagel. So all three students from Ravindranath Tagore, and congratulations Gungun, Govind and Vivan. I think Vivan is not present right now. We will provide the award and medals after. And I think Raghav, Samarth and Drishti, all three students is present here with us. Great achievement for him, for his parents as well as for the school. It's a proud moment for us. Please appreciate the boy for his clapping. हिंदुस्तान ओलंपियाड जैसे एक बड़े एग्जामिनेशन में जो देश भर में कराया जाता है, उसमें जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी फ्यूचर लीडर्स स्कूल से हमें मिले. इसके अलावा रैंक होल्डर में फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, 7th रैंक, 9th रैंक, ऐसे 6 रैंक होल्डर्स. प्राउडेबल मोमेंट विद योर चिल्ड्रन. Next to the turn for class 5th, Bhimrao Ambedkar. Third position holder name is? Second position holder from class 7th. The student name is Nirbhay Parashari. So clapping for Radhika and Nirbhay. And the first rank holder from class 7th is Divyanshu Pratap Singh. So congratulations Divyanshu, Nirbhay and Radhika. And before I announce that हिंदुस्तान ओलंपियाड के एग्जामिनेशन में समर्थ मौर्य ने जिले को टॉप किया था, पहला रैंक था. उसके साथ साथ
Nirvay Parasari, class 7 के Present here, please come on the stage with your parents. आज हम सब लोग फ्यूचर स्कूल में एकत्रित हुए हैं और जब मैं इधर से निकल के जाता था तो कई बार मेरे मन में ये विषय आता था कि इस स्कूल में कभी रोका जाए। वैसे ही मन में अच्छा देख के यहाँ कभी बच्चे मैंने बाहर नहीं देखे और यहाँ का डिसिप्लिन देख के मुझे लगता था कि कभी चल ठीक है, लेकिन समय की ऐसी व्यस्तता रहती थी जिसके कारण कभी भी रुकना नहीं हो पाया। लेकिन हमारे बीपी सिंह जी का फ़ोन आया कि इस तरीके से कार्यक्रम है तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने मेरे क्षेत्र में एक अच्छा विद्यालय इन्होंने स्थापित किया है तो मैं ज़रूर अपने उस विद्यालय में जाएंगे। ऐसे हमारे इस स्कूल के प्रबंधक श्री बीपी सिंह जी, हमारे प्रधानाचार्य जी और हमारे इस विद्यालय में जिन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया है, बच्चों में अच्छे संस्कार देने का काम किया है, ऐसे सभी हमारी शिक्षिकाएं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, वास्तव में बहुत ही सुंदर अभी दृश्य था। उन माता पिताओं को भी गौरवान्वित होने का अवसर यहाँ मिल रहा था जिनके बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक प्राप्त की है। उनको जो सम्मानित करने का तरीका था, मैं बहुत विद्यालयों में आता जाता हूँ, बहुत विद्यालयों में मुझे अवसर इस तरीके के कार्यक्रमों में रहने का मिलता है, लेकिन आपके यहाँ का जो डिसिप्लिन, आपके यहाँ का जो बच्चों में एक फीलिंग्स कि हम कोई डिग्री जब लेने जाते थे उस समय टीवी के माध्यम से, अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से देखते थे कि इस तरीके के बच्चों को पोशाक पहनाना, कि जब डिग्री मिलती थी तभी इस तरीके की ड्रेस मिलती थी। लेकिन बच्चों में इससे एक उनका आत्मबल मजबूत हो कि हम आगे इसी तरीके से बढ़ते रहें। इसके लिए विद्यालय परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और क्षेत्र में बहुत सारे विद्यालय मैंने देखे, लेकिन आप लोगों ने जो मेहनत और परिश्रम करके हमारे क्षेत्र की जनता के मन में फ्यूचर स्कूल ने जो स्थान बनाया है वह वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है। और सभी गार्जियन से मैं बात कर रहा था, हमारे आशीष जी कह रहे थे कि ये स्कूल खुलने से हम लोगों की चिंताएं शिक्षा के प्रति खत्म हो गई, अब हमें चिंता नहीं है। तो ये विचार आना गार्जियंस के कि वास्तव में एक अच्छा विद्यालय हमारे क्षेत्र में ये डेवलप हो रहा है। हम सब लोग इस विद्यालय को गति देने के लिए, इस विद्यालय परिवार की मदद करने के लिए, इस विद्यालय को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम सब इसके सहयोगी बने। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने अच्छी शिक्षा ग्रहण कराने में ये विद्यालय हमारा निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा। मैं उन सब बच्चों को हृदय से बधाई देता हूं जिन्होंने स्थान प्राप्त करके यहाँ पुरस्कार लिए हैं, और पुरस्कार उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जो कुछ बेहतर करते हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे बेहतर करने से रह जाते हैं, तो जो बच्चों को पुरस्कार दिया है उस पुरस्कार से उन बच्चों से प्रेरणा लेकर हमको जानी चाहिए कि इस बार हम चूक गए, लेकिन अगली बार हमें चूकना नहीं है। हम बेहतर प्रदर्शन करके अपने कक्षा में अच्छा स्थान बनाने का काम करेंगे। मैं विद्यालय परिवार को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी बच्चों को अपने बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। अपनी अपनी भावनाएं, अपने विचार माता पिता और बच्चों के सामने व्यक्त किए। सहृदय आभार आपका। प्यारे बच्चों और प्रिय अभिभावक माता पिता, अभी
रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का एक फेज केवल कंप्लीट हुआ है, तो ऐसा ना समझें कि आप रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और आप जाने की तैयारी प्लीज़ ना करें। कल प्री प्राइमरी टू सेकेंड क्लास तक के बच्चों का रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन था और रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक दिन में गैदरिंग पीछे ज़्यादा हुई थी, इसलिए हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया जिससे कि प्रॉपर वे में हम इसको मैनेज कर पाएँ। तो प्लीज़ आप धैर्य बनाए रखें, आप जाए ना। और भी बच्चे अभी सम्मानित होंगे, और भी बच्चे हमारे हाईएस्ट अटेंडेंस अवार्ड, क्रिटिकल थिंकिंग अवार्ड, साइंटिफिक अवार्ड, राइजिंग स्टार अवार्ड, किड्स अवार्ड्स, बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो भी हर भरसक प्रयास हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। एकेडमिक में क्लास में तो देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही बच्चे आएंगे या फिर रैंक में टॉप 10 में बच्चे आएंगे, तो उसको लेकर अपना प्लीज आप लोग मनोबल आप कमजोर ना करें। किसी का भी बच्चा है और वो आपका बच्चा है। आज अगर दूसरे बच्चे को लेकर अगर आपके मन में उमंग आएगी तो निश्चित ही एक दिन बच्चा हमारा वो भी कहीं ना कहीं श्रेणी में आएगा। तो ये रिपोर्ट कार्ड बच्चे को केवल मार्क्स से जज कर सकते हैं, बट बच्चे की क्षमता से कभी भी आप उसको इस रिपोर्ट कार्ड से ना आके प्लीज। पीछे आपने देखा अभी 15 डेज बिफोर स्पोर्ट्स मीट कराया गया था, लगभग 750 से ऊपर बच्चे मेडल्स लेकर गए थे। जो बच्चे एकेडमिक में प्रॉपर नहीं थे, लेकिन उन बच्चों ने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दिया। एक बच्चे को 2-2, 3-3 अवार्ड मेडल्स मिले थे। तो इससे ये लगा था कि पढ़ाई में हो सकता है कि बच्चा हमारा एवरेज था, लेकिन स्पोर्ट्स में उसने बहुत अच्छा किया। तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स में उनको पुश किया। पेरेंट्स को भी चाहिए, अगर बच्चा खेल रहा है, और अगर अभी साइंस एग्जीबिशन थी तो उसमें बहुत सारे बच्चों को सर्टिफिकेट दिए गए, उन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मॉडल्स बनाकर वो लेकर आए। तो उनके हर छोटे प्रयास के लिए हम उनकी सराहना करें। यदि रैंक में नहीं भी आया है बच्चा यदि आज, तो उसका प्लीज आप हमारी तरफ से समय का थोड़ा सा अभाव यहाँ रहता है। क्लास में हमने सभी टीचर से मीटिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया, हर बच्चे का मनोबल बढ़ना चाहिए, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और आप भी उसी तरीके से उसका मनोबल बढ़ाएं कि कोई बात नहीं, अभी अगर रैंक नहीं आई है बट नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी कुछ कमी रह गई थी, अब आपकी रैंक जरूर आएगी। और केवल रैंक के लिए ही पढ़ाई नहीं होती है, या हम सब जानते हैं बीइंग ए पेरेंट, केवल रैंक के लिए पढ़ाई नहीं होती कि रैंक आ जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमें ओवरऑल अपने बच्चे की पर्सनालिटी को एनहांस करना है, जो हम प्रयास कर रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं बड़ी संख्या में बच्चे स्पोकन में अब अच्छे हो रहे हैं। R7 भारत देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार इस समय फ्यूचर लीडर्स स्कूल में मौजूद है। चूंकि अभी हमने अवार्डिंग सेरेमनी से आपको रूबरू कराया, वो पेरेंट्स हमारे बीच में मौजूद हैं जिनके बच्चे अव्वल आए और रिजल्ट घोषित हुआ। उन्हें किस तरह की खुशी महसूस हो रही है, किस तरह का गौरव वो अपने आप में फील कर रहे हैं। भैया से बात करें, क्या नाम भैया आपका? भैया आपका बच्चा फ्यूचर लीडर्स स्कूल से सामने पढ़ता है, कौन सी क्लास में? रिजल्ट घोषित हुए, बच्चे ने कौन सा रैंक प्राप्त किया? फर्स्ट रैंक प्राप्त किया। कैसा फील कर रहा है? बढ़िया। स्कूल को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बढ़िया सुविधा मिल रही है, बढ़िया सुविधा बढ़िया मिल रही है। ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या कुछ आप कहेंगे जिनके बच्चे इधर उधर हैं, सही संस्थानों में नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा सर, बच्चों के लिए सही स्कूल में लाएँ, अच्छी शिक्षा मिलेगी, फ्यूचर स्कूल बढ़िया। तो भैया को आपने सुना, बेहतर खुश है, और खुशी की लहर की बात ही है, क्योंकि पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब उनके बच्चे कहीं ना कहीं टॉप करते हैं, और फ्यूचर लीडर्स स्कूल उसी को लेकर लगातार जगमग नजर आ रहा है। अंकल भी हमारे साथ में मौजूद हैं, अंकल से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? कक्षा 8 में। 5 बच्चे यहाँ पर स्टडी करा रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके बच्चों ने टॉप किया? अच्छी बिल्कुल, तो बहुत पहले नंबर पर स्कूल चल रहा हूँ, पहले नंबर पर है। ऐसे माता पिताओं को और क्या कुछ कहना चाहेंगे? माता पिता सहयोग देते रहेंगे और हमारे डायरेक्टर प्रधानाचार्य सहयोग देते रहेंगे, स्कूल आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो अंकल को भी आपने सुना, सभी परिवारों के बीच खुशी की लहर है जिनके बच्चे लगातार टॉप कर रहे हैं, और ऐसे में बहुत अहम हो जाता है जब पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी नजर आती है। भैया क्या नाम है आपका? राजेंद्र मौर्य। बिल्कुल, अभी बीते कुछ दिन पहले R7 परिवार से आप रूबरू हुए, आपके बच्चे ने जिले पर टॉप किया। इस समय आप कैसे खुशी महसूस करा? रिजल्ट घोषित हुआ, कौन सा बच्चे ने प्राप्त किया? आज सर बहुत खुश हूँ सर, और इससे पहले भी खुशी मिल चुकी है मुझे, आपसे मेरी बातें हो चुकी है, चैनल से बात हो चुकी है, और सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज भी बच्चे ने यहाँ पर एक रैंक हासिल की है, सेकंड रैंक है, और जिले में इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर इसका श्रेय जाहिर सी बात है सर, यहाँ का पूरा जो मैनेजमेंट स्टाफ, स्कूल के सभी लोग बहुत अच्छे, बहुत ही सुव्यवस्थित, मतलब बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर एकदम बढ़िया पढ़ाई
बढ़िया मैनेजमेंट है यहाँ पे, बहुत शानदार लोकेशन है सर। पेरेंट्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे मैं आप? सर ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे जो इधर उधर भटक रहे हैं, जो अभी अच्छे स्कूल के चक्कर में लोग इधर उधर भटक रहे हैं, वो कृपया करके बिना देरी के जितनी जल्दी हो सके ये फ्यूचर लीडर स्कूल जो कि बिलसी का बदायूं जिले का टॉप वन का एक नंबर 1 रैंकिंग का ये स्कूल है, और आने वाले टाइम में ये बहुत ही बढ़िया एक रैंक हासिल करने वाला है पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर। बहुत अच्छी बात है और चेहरे पर लगातार खुशी है और लगातार बिल्कुल स्कूल के लिए संस्था के लिए लगातार शुभकामनाएं पेरेंट्स देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब अच्छी रैंक हासिल करते हैं तो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा इसकी खुशी महसूस होती है। भैया क्या नाम है आपका? भैया आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? 5th में पढ़ रहा है। 5th क्लास में पढ़ता है। रिजल्ट घोषित हुए, बच्चे ने कौन सा रैंक हासिल किया है? यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, यहाँ के स्टाफ को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा स्कूल है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो आगे उन पेरेंट्स के लिए क्या कुछ आप अवगत कराना चाहेंगे जिनके बच्चे इधर उधर पढ़ रहे हैं, उनको लेकर? मैं चाहता हूँ जो है सारे पेरेंट्स जो है बच्चों को अपना यहाँ पढ़ाए हैं, मैनेजमेंट और स्टाफ बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो हर एक पेरेंट्स से आपका रूबरू कराएंगे जिनके बच्चों ने बेहतर अंक के साथ साथ अपने पेरेंट्स का नाम, स्कूल का नाम, यहाँ के स्टाफ का नाम जो रोशन किया है। भैया भी हमारे बीच आएंगे, भैया से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? पवन भाई, कितना खुश हैं आप अपने बच्चे को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश है। यहाँ का इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जो बच्चे ने डायरेक्टर साहब को इसका श्रेय देना चाहेंगे? तो स्कूल को लेकर मुझे लगता है बेहतर खुशी है और आगे भी इसी तरह खुशी जाहिर रहेगी। वातावरण बहुत अच्छा है, स्टाफ को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी है। तो लगातार हर पेरेंट्स की ज़ुबान पर कहीं ना कहीं संस्थान का नाम, तो यहाँ के मैनेजमेंट का नाम, यहाँ के स्टाफ का नाम लगातार उनकी ज़ुबान पर है, क्योंकि बच्चे लगातार टॉप रैंक के साथ साथ एक अच्छी मिसाल कायम करते हुए नजर आ रहे हैं। आज 7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज 7 परिवार में शिक्षा के संस्थान यानी कि फ्यूचर लीडर्स स्कूल में मौजूद है और आज जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनसे हम और आप नहीं बल्कि मुझे लगता है किसी तरह की कोई परिचय की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और बिलसी विधानसभा से आपको बता दें विधायक हरीश शाक्य जी हमारे बीच में मौजूद हैं। सर यहाँ चीफ गेस्ट रहे, सर ने तमाम ऐसे छात्रों को सम्मानित किया, अवार्डिंग दी। अब सर से बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका आज 7 भारत पर। सर आज शिक्षा के संस्थान फ्यूचर लीडर्स स्कूल में आप पहुंचे, तमाम छात्रों को आपने सम्मानित किया, कैसा फील है सर? चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ जी। आज हमारी पूरी विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छा विद्यालय खुला है, इसका मुझे बहुत गर्व है कि अब बच्चे हमारे क्षेत्र की अच्छी शिक्षा यहाँ ग्रहण कर पाएंगे। और अभी जब मैं पुरस्कार वितरण कर रहा था तो एक से बढ़ के एक देख रहा था, सारे छात्र बहुत ही होनहार दिख रहे थे और उनमें क्वालिटीज़ दिख रही थी। उनको यहाँ सम्मानित करने का, उन्होंने अपनी कक्षा में रैंक पाई है, उनको मुझे सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ये हमारा विद्यालय इसी तरीके से दिन रात तरक्की करे और आगे बढ़े, हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन करे। और मैं विद्यालय के प्रबंधक जी को, विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने यहाँ छात्रों के अंदर अच्छी शिक्षा देने का काम किया है, उनका हृदय से बहुत धन्यवाद। सर इसका श्रेय कहीं ना कहीं आपको जाता है क्योंकि विधानसभा के आप मालिक हैं, कहीं ना कहीं आपने इस विधानसभा को लगातार चमकाने का ऐसा अवसर किया। आप लगातार बड़े बड़े संस्थानों में पहुंचते हैं, वहाँ के जो अध्यापक हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, लगातार आप उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा, इसका श्रेय पूरा का पूरा आपको जाता है क्योंकि यहाँ को चमकाने का कार्य आपने किया है। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है, ये कोई घर का मालिक है वो चाहता है हमारा घर चमके, कोई किसी चीज़ का अपना मालिक है वो चाहता है हमारी चीज़ बेहतर बने। मैं भी, हम इस विधानसभा से इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी भी इच्छा रहती है मेरे क्षेत्र में अच्छे अच्छे विद्यालय आएँ और हमारे क्षेत्र के बच्चे हर जगह पूरे देश में जाकर अपनी सेवाएं दें, ऐसा सबको भाषित रहता है। यही मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दिला सकें, अच्छे संस्थान हमारे यहाँ खुल सकें। सर एक पॉलिटिकल सवाल आपसे करना चाहूँगा। लगातार सूबे की सरकार शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर लगातार अग्रसर है, जिसमें कहीं ना कहीं आप सभी लोगों का पूरा पूरा योगदान है अपनी अपनी विधानसभाओं को लेकर, जिले को लेकर। लेकिन ऐसे में जो विपक्ष है लगातार इस पर रोटियां सेकता हुआ नजर आ रहा है कि शिक्षा के संस्थानों में लगातार बच्चों की अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही, युवा जब शिक्षित हो जाते हैं तो वो बेरोजगार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक चुटकी लेता हुआ विपक्ष नजर आता है। ऐसे में अगर समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें तो सबसे ज्यादा उनकी चुटकी बहुत होती है। सर देखिए, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु जिस निवृत्त हैं ऐसी, जो व्यक्ति जैसा सोचता है
माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि कुंभ में जिसने जो देखा उसे वैसा मिला। बिल्कुल सर। तो देखने का सोच, देखने की दृष्टि है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो निरंतर विकास हो रहा है हर क्षेत्र में, आपने शिक्षा की बात की है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आज शिक्षा के संस्थानों को देखिए आप कितने बेहतर हुए हैं। हमने प्राथमिक स्तर की शिक्षा को इतना बेहतर करने के लिए बच्चों को किताबें फ्री में दे रहे हैं, बच्चों को जूते, मोजे, बस्ता सारा कुछ फ्री में दे के अच्छी शिक्षा मिले। और गरीब बच्चों के लिए हमने एक मंडल स्तर पर अटल आवासीय विद्यालय बनाया, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये अच्छा स्कूल है हमारे यहाँ, और यहाँ हर व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। हमने गरीब बच्चों जो श्रमिक हैं, जो गांव में रहते हैं, जिनके बच्चे पढ़, उनके लिए अच्छी शिक्षा मिलने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है, ऐसे लोगों के लिए हमने हर मंडल पे एक अटल आवासीय विद्यालय बनाया है। बहुत अच्छे स्तर का विद्यालय। तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। शिक्षा ही ऐसी एक चीज़ है, शिक्षा से ही हमारा देश तरक्की कर सकता है। तो सर के शब्दों को आपने सुना, बेहतर शब्दों का सर ने इस्तेमाल किया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अग्रसर है, और शिक्षा क्या हर डिपार्ट को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अग्रसर आगे लगातार निरंतर बढ़ रही है। और ऐसे में सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि विपक्ष चाहे जितनी भी रोटियां सेक ले, लेकिन हमें अपने सूबे का किस तरह से ख्याल रखना है। इसमें सिर्फ अमीर ही नहीं, चाहे गरीब तबके का बच्चा हो, हर बच्चे लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। तो फ्यूचर लीडर्स स्कूल में आज जो अवार्डिंग सेरेमनी फंक्शन आपने देखा, इसके अलावा हमने यहाँ के पेरेंट्स, जो बच्चों के पेरेंट्स थे, उनसे आपको रूबरू कराया। अब यहाँ के जो स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। आज क्लासरूम में हमारी मौजूदगी है, 1 बाय 1 सभी स्टाफ के पास पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय है यहाँ की जो छात्रों को या छात्राओं को पढ़ाने का, उसका पूरा श्रेय यहाँ के गुरुओं को जाता है, यहाँ के स्टाफ को जाता है, यहाँ के टीचर्स को जाता है। कौन कौन टीचर्स या ऐसे जो टीचर्स हैं किस किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, और ऐसे में कितना श्रेय वो किसे किसे देना चाहेंगे, 1 बाय 1 सभी से बातचीत करेंगे। पहले मेल से स्टार्ट करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर मैं सिर्फ केशव शर्मा। आज अवार्डिंग सेरेमनी फंक्शन हुआ, आपने तो उसे होस्ट भी किया है, मैंने ब्लॉग भी है। कैसा महसूस आप कर रहे हैं, और कौन कौन सी कक्षा के आप छात्रों को पढ़ाते हैं? मैं मेनली क्लास 4, 5, 6, 7 सभी क्लासेस में पढ़ाता हूँ। बेसिकली क्लास 7 का टीचर हूँ, और लास्ट 20 ईयर्स से मैं यहाँ पर होस्ट भी कर रहा हूँ। और ये बहुत एक अच्छा मूवमेंट होता है कि जब हमें बच्चों में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन बच्चों से ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट होती है रिपोर्ट कार्ड बनाते टाइम कि कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। कभी कभी बहुत चैलेंजेस ऐसे देखने को मिलते हैं कि किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो कि 1-2 मार्क्स से उसकी रैंक रह जाए। हम कोशिश करते हैं कि सभी बच्चे अपने तरीके से जो उनका पोटेंशियल है उसका पूरा हर तरीके से उसका यूज़ कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है? आप आज जो फंक्शन हुआ और इसको लेकर आप लगातार बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, कौन सी क्लास के बच्चों को आप शिक्षा देते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों का श्रेय आप ही लोगों के लिए जाता है? यस सर, टीचर्स का तो मेनली श्रेय होता ही है बच्चों को सक्सेस करने में, कि सभी टीचर्स अपना पूरा 100% देते हैं बच्चों को कि वो सभी अच्छी सफलता हासिल करें। बट उसके बाद भी बच्चों की अलग अलग रैंक्स होती हैं क्लास में, क्या रैंक उन्होंने हासिल की है, उसके बाद उनकी सफलता डिसाइड होती है। मगर यहाँ पर जो मेनली जो सपोर्ट होता है, कैसा महसूस आप कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में टॉप किया? हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ये, मतलब बच्चों के लिए स्पेशली जो बच्चे अचीव करे हैं, तो उन बच्चों के लिए, और उनके गार्जियंस भी बहुत हैप्पी होते हैं जो भी बच्चे इसमें रैंक हासिल करते हैं, और सभी बच्चों को प्रयास करते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर। पीछे जो लेंगे सबसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आज स्टाफ की जुबान पर कहीं ना कहीं बच्चों का नाम तो है ही, लेकिन ऐसे में सबसे ज़्यादा मेहनत इन्हीं लोगों की है। मेहनत और लगन के साथ जो परिश्रम ये लगातार कर रहे हैं, उसमें ये बच्चे कहाँ तक जाएंगे, किस मुकाम को हासिल करेंगे, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशेष चौहान। विशेष चौहान। सर ये बताइए, आज बच्चों ने बड़ा अचीवमेंट किया है और बेहतर नाम रोशन किया है संस्थान का, इसका श्रेय आप ही लोगों के लिए जाता है, क्योंकि आप पूरी मेहनत और लगन के साथ बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं। कौन सी क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हैं और कैसा महसूस आपका? सर मेनली मैं 6th में साइंस और SST पढ़ाता हूँ। बिल्कुल। और बच्चों ने जिस तरीके से प्रयास किया और जिस तरीके से मेहनत किया, उसका से टीचर्स को जाता है, साथ में उन बच्चों को भी जाता है कि वो इतनी कठिन परिश्रम के साथ अपनी मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो आगे चल के देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? कैसा महसूस आप करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक ऐसा फील आ रहा होगा कि आज हमारे पढ़ाई में बच्चे लगातार टॉप कर रहे हैं, उनकी पेरेंट्स की जुबान पर आपका नाम है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम आयुष कुमार सिंह जी। कैसा महसूस कर रहा है आयुष भाई? बिल्कुल सर, अच्छा फील कर रहा हूँ, और काफ़ी सौभाग्यशाली कि आज बच्चों को
का मौका मिला। दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका है, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस बेहतर मुझे लगता है, अच्छा महसूस आप कर रहे होंगे अपने आप में, और आगे इसी तरह बच्चों के लिए आपका योगदान जारी रहेगा। जी बिल्कुल, अच्छा इसलिए भी हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनके मार्गदर्शन में सभी चीज़ें जो चल रही हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है, वो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकित राव। अंकित भाई बताइए, कैसा महसूस आप कर रहे हैं? बच्चों ने टॉप किया है, बेहतर मिसाल बच्चे कायम कर रहे हैं, बच्चों की ज़ुबान पर, उनकी पेरेंट्स की ज़ुबान पर आपका नाम है। बहुत ही अच्छा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर बहुत ही काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं इस फील्ड में, काफ़ी नॉलेज है। चूँकि मैं शुरू से ही विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, तो इन बिगर पर्सन मैंने देखा है जो अचीवमेंट हमारे स्कूल में किया है इस एरिया में, जिले भर में एक अच्छा नाम रोशन जिले किया में है। जिले में पूरा। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? सर ये बताइए, कैसा महसूस आप कर रहे हैं? ये खुशी की बात है। ऐसे ही बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम पूरे साल बच्चों को मेहनत करते हैं, जुलाई अब हाँ तो एक अच्छा फीलिंग होता है, गार्जियंस को भी अच्छा लगता है। बच्चे जब अवार्ड लेते हैं, मोटिवेट होते हैं, उनको आगे जाके फील्ड में लाइफ में क्या करना है, यहाँ से एक उनको एक स्टेज मिलता है कि वो इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं। एक अच्छा बच्चों के लिए योगदान आपका इसी तरह जारी रहेगा। कंटिन्यू। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामदर्शन सर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सीनियर आप ही हैं यहाँ पर, तो आपका योगदान सबसे ज़्यादा रहता होगा बच्चों के लिए। नहीं, मैं वैसे तो आप मुझे मेरी एज के अकॉर्डिंग सीनियर कह सकते हैं, लेकिन मैं इस स्कूल के लिए जो है वो बहुत कम आयु है मेरी। मुझे अभी मेरे जो बीपी सिंह सर है मेरे साथी हैं और उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं यहाँ आ गया हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपका योगदान भी जारी रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल रहेगा सर। और बीपी सिंह जी जो है वो उनका प्रयास ये है कि हमारे क्षेत्र से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं वो आदर्श नागरिक बन के निकले। बहुत अच्छी बात है, सर ने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया कि आदर्श नागरिक बन के निकले। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब बच्चे यहाँ से पास आउट होकर आगे जाएंगे तो उनकी जब नींव यहाँ से रखी गई तो उनकी ज़ुबान पर भी इस स्कूल का ही नाम होगा। सबसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अजय जी ये बताइए, कितना खुश आप हैं? इसका क्रेडिट किसे देना चाहिए? क्योंकि यहाँ का मैनेजमेंट तो सभी रंग लेकर आया है, और ऐसे में बच्चे जो आज पास आउट हुए हैं उन्होंने अलग दिशा कराई। सारा क्रेडिट ऑल स्टाफ एंड मैनेजिंग एंड मोस्टली ऑल स्टाफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल, मतलब सभी का मतलब पूरा योगदान रहा यहाँ तक बच्चे मतलब पहुँच पाए और देश में ये पहुँचेंगे, मतलब देश के उस स्थान पर पहुँचेंगे तो देश का भी नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे और विद्यालय का नाम सामने रोशन होगा ही। यहाँ के बच्चों के तो हौसले बुलंद हैं, लेकिन यहाँ के स्टाफ की बात की जाए तो उनके हौसले उनसे ज़्यादा बुलंद हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये ठान रखा है कि जब बच्चे यहाँ से पास आउट होकर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा मुकाम बिल्कुल हासिल करेंगे और फीमेल स्टाफ की ओर बढ़ेंगे और फीमेल स्टाफ से बातचीत करेंगे। और इस समय थोड़ी तस्वीर मैं क्लासरूम की भी दिखाना चाहूँगा। डिजिटल क्लासेस की ये तस्वीर है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि AI का ज़माना है और AI के ज़माने में बच्चों को मॉड्यूल तरीके से स्टडी कराई जा रही है। क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं और अभी से AI जैसे समय को वो एक साथ लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है उनका भविष्य उज्जवल बनता जाएगा। फीमेल स्टाफ की ओर चलेंगे और लाइन से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? My name is Anjali and I am teacher of pre-primary two. मैं चाहूँगा थोड़ा हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल आप करें, क्योंकि दर्शक जैसे कि आप जानते हैं कि मैं प्री प्राइमरी बच्चों को संभालती हूँ यहाँ पे, और जैसे कि आप जानते हैं कि यही हमारी नींव है। अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो हमारे बच्चे आगे करके अच्छा जाएंगे। कौन सी क्लास के बच्चों को प्री प्राइमरी इन द सेंस NCPG के टीचर। NCPG के लिए। और ऐसे में बच्चों के लिए योगदान रहना और उनके पेरेंट्स की जुबान पर यहाँ के मैनेजमेंट का नाम होना, तो कैसा महसूस आप कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे बच्चे मोस्टली बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। सारे बच्चे 80% 90% बच्चे बहुत आगे अच्छे से बढ़ रहे हैं और हम तो यही चाहेंगे हमेशा आगे ऐसे ही आगे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। Thank you. क्या नाम है आपका? इस समय मेरा नाम राखी गुप्ता है, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ प्राइमरी विंग में। कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा। कल साहब हमारे ग्रेजुएशन डे में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का हुआ था। उन बच्चों की खुशी देख के ना मतलब मेरी एनर्जी डबल हो गई है। मैं इतनी खुश हूँ बच्चों को देखना, विशेष देना, फोटोज़ करना, मतलब बच्चों के साथ मेरी एनर्जी डबल हो गई है। मैं इतनी खुश हूँ आज कि आज मेरे बच्चे कहाँ तक जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैम क्या नाम है आपका? My name is Ritu Srivastava. जी, कैसा महसूस आप कर रहे हैं? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल से जुड़कर। बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं या जो प्रिंसिपल सर है वो बहुत अच्छा टीचिंग एटमॉस्फेयर है। कौन सी क्लास के बच्चों का स्टडी कर रहा है? सर मैं तो 6th क्लास को पढ़ाती हूँ। बहुत अच्छी बात है। फीमेल स्टाफ भी कहीं ना कहीं बेहतर रूप से जागरूक है और मैम से बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम तानवीश है। जी, कितना खुश है आप? बहुत ज़्यादा। मैं तो यहाँ पे टीचिंग से पहले पेरेंट्स हूँ,
मेरे बच्चे यहाँ पे 3-4 साल पहले से पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके बच्चे भी यही स्टडी करते हैं? मैं जॉब बाद में की हूँ, बट स्कूल काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। मैं देंगी, बट यहाँ का इन्वायरमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी। कितना खुश है आप? बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, जितना हमने सोचा नहीं था उससे अच्छे मार्क्स। तो बच्चों के लिए आपकी ये मेहनत यूँ ही निरंतर जारी रहेगी? जी। अच्छी बात है, बहुत हौसले बुलंद है। आप पीछे चलेंगे और मैम को से बातचीत करेंगे, उनकी जुबानी भी आपको सुनवाएंगे कि आखिर इन लोगों का तो योगदान है ही है, लेकिन इनके हौसले कितने बुलंद हैं वो भी फ्रंट पर आना बहुत ज़रूरी होता है। मैम क्या नाम है? सर मेरा नाम अमीशा बाशा। जी, कितना खुश है? सर मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे आज बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है सर। तो आप कौन सी क्लास में स्टडी कर सर चुके हैं? मैं थर्ड से बहुत अच्छी बात है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी सिंह है। कितना खुश है मैम, आपकी मेहनत और लगन हमने देखी। जी, बहुत आपने स्टार्टिंग से ग्राउंड जीरो से हमारी तरफ पूरा कवरेज किया, जी। और ऐसे में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा योगदान आप ही लोगों का है। आप कौन सी क्लास में बच्चों की स्टडी? मैं सेकंड थर्ड में पढ़ाती हूँ। पेरेंट्स की जुबान पर आप लोगों का नाम है, डायरेक्टर सबका नाम है, तो बहुत खुशी हो जाती है। कैसा महसूस आप करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम साक्षी। साक्षी गुप्ता, कितना खुश है आप? बहुत खुश है, बहुत अच्छी बात है, खुश होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हिमा सक्सेना है। जी मैम, कितना खुश है आप अपने छात्राओं को लेकर? सर मैं बहुत खुश हूँ, जैसे हम लोग के बच्चों को स्टडी कराया, बच्चों की स्टडी की, बच्चे जो है रैंक होल्डर बने हैं। फिर वहाँ पर उनको जब प्राइज़ मिला तो मतलब जब उनको गाउन पहनाकर उनको प्राइज़ मिला तो ऐसा लग रहा था, मतलब इतना अच्छा फील होता, वो मतलब उनको प्राइज़ मिला, मुझे प्राइज़ मिला, ऐसा लग रहा था। ये बहुत अच्छी बात आपकी जुबान पर इस तरह के शब्दों का आना कि वो प्राइज़ तो ज़रूर बच्चों को मिल रहा था, लेकिन खुशी मुझे हो रही थी कि वो प्राइज़ मुझे मिल रहा है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उन बच्चों को प्राइज़ मिला है। जब ये कूट कर बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा योगदान इन्हीं लोगों का है। थैंक यू सो मच मैम। मैम क्या नाम है? कितना खुश है आप? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ मेरी क्लास के बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। ये आपका फर्स्ट स्कूल है यहाँ पर स्टडी के लिए? नो सर, इससे पहले भी आप यहाँ पहले के अकॉर्डिंग यहाँ कितना खुश है? बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ के बच्चों के साथ रहना। बच्चे एज अ टीचर हमें उससे ज़्यादा हमें पेरेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? कितना खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश देखकर, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। कौन सी क्लास के बच्चों को स्टडी कर रहे हैं? मुझे लगता है छोटे बच्चों ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, सबसे ज़्यादा अवार्ड तो इन्हीं लोगों ने हासिल किया है। बहुत अच्छा कर। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। मैम क्या नाम है? कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। इसी तरह आपका योगदान जारी रहेगा बच्चों के लिए, मेहनत और लगन के साथ। आप ये देखना चाहते होंगे कि हमारे बच्चे IAS ऑफिसर या फिर अच्छे डॉक्टर बन के निकले, अच्छे इंजीनियर बने, तो उसमें अगर कहीं ना कहीं उनकी जुबान पर आपका नाम होगा। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है मैम आपका? कितना खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत अच्छी बात है। मैम क्या नाम है आपका? का मैम आप कितना खुश हैं अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि शब्दों की तो कोई पहल नहीं होती है, जितने शब्द इस्तेमाल किए जाए वो बहुत कम होते हैं, लेकिन आज जो खुशी का लम्हा था, खुशी का दिन था, वो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। कैसा महसूस आप कर रहे हैं? खुशी भी महसूस कर रही हूँ, ऊपर से गर्व बहुत महसूस कर रही हूँ कि बच्चों ने इतना अच्छा किया, मेरे साथ की मेहनत से वो आज बन रही है। और इसे हमको ये जब आज जो आयोजन हमने किया था, इसी तरह से हमको ये पता चला कि बच्चों को प्रोत्साहन मिला, जिससे उनको पॉजिटिविटी मिली है, उनको आगे और अच्छा करें। तो इसी तरह आपका योगदान जारी रहेगा। मैम शायद आप स्पोर्ट्स टीचर हैं मुझे लगता है, और इससे पहले स्पोर्ट्स मुझे लगता है प्रतियोगिता भी हुई थी, यहाँ के बच्चों ने टॉप किया था, तो आपका तो एक अलग पार्ट्स हो जाता है, इस स्कूल के लिए बहुत अहम हो जाता है। आज आप कितना खुश हैं? आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मेरे द्वारा कराए हुए गेम्स भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें भी मेडल्स प्राप्त किए, प्लस साथ में आज स्टेज में रैंक होल्डर की रहे हुए हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैम साथ पढ़ने में भी तेज है बच्चे। उनका योगदान काफ़ी अहम हो जाता है और टीचर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्हें यहाँ स्टडी तो करानी है, इसके अलावा बच्चों को किस तरह से जो शारीरिक गेम्स होते हैं उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो शायद यही जानते होंगे। मैम क्या नाम है आपका? मैम आपका तो अहम योगदान है इन लोगों से अलग, आपने बढ़ चढ़ कर बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन की। कौन सी क्लास के बच्चों को स्टडी करा रहे हैं? आज आपके बच्चों ने बेहतर रूप दिया, बेहतर रूप का देखते हुए आपकी बहुत प्राउड मोमेंट है, बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो इसी तरह आपकी मेहनत जारी रहेगी। मैं
ऐसे ही यहाँ पर सहयोग करते हैं सर का सभी स्टाफ हमेशा मिलने के जी, लिए जी। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति है। जी। कितना खुश है आप अपने इन छोटे बच्चों को लेकर? कौन सी क्लास बच्चों को स्टडी कराते हैं आप? सर मैं ऐसी क्लास में सर बहुत खुश हूँ जो छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं और वो हमारी बस सुनते हैं, से स्टडी करते हैं, उन्हें प्राइज मिलता है, अच्छा लगता है। तो इसी तरह मैडम आगे जारी रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। मैम क्या नाम है आपका? कितना खुश है आप बच्चों को लेकर, क्योंकि आज बच्चों ने जो अहम लम्हा हासिल किया है और बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, उसको लेकर कितनी खुशी है? बहुत खुश हूँ सर, और जब हमारी पढ़ाई में बच्चे कुछ टाइम में अचीव करेंगे तो और भी ज़्यादा खुशी और ज़्यादा खुशी होगी। क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर बन के निकले, इंजीनियर बन के निकले? आगे जब हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वंशिका मैडम का नाम उनकी जुबान पर होगा कि उन्होंने हमें स्टडी कराई थी। जी सर, यही चाहते हैं कि जो भी करें अच्छा करें। जो भी करना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है स्टाफ की, क्योंकि इनका श्रेय मैंने एक बार फिर रिपीट करूंगा, डायरेक्टर सर का बहुत अहम योगदान हो जाता है तो विश्व प्रताप सर का, क्योंकि इन्होंने जो एक एक तिनका तिनका चुन के संस्थान को खड़ा किया है। पहले भी कई संस्थानों में अपना योगदान दे चुके हैं, वहाँ एक सीनियर लेवल पर वो रह चुके हैं, और आज उन्होंने जो झंडा जो लहराया है, जो चार चांद लगाए अपने संस्थान को लेकर, वो बहुत अहम हो जाते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैं सब खुश हूँ कितना खुश है आप? सर, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें उतनी खुशी है कि खुशी अभिभावकों को होती है। क्योंकि पेरेंट्स की जुबान पर आप लोगों का नाम था। जी हाँ, टीचर जो है वो भी मतलब पेरेंट्स की तरह ही हो, और हम अपने बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए वो हर फील्ड में बैठ कर सकते हैं, सार्वजनिक विकास हो उनका, और हमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब और वेरियस फील्ड में हर एक तरीके से उनको अच्छा मिलना चाहिए। तो इस बार जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे लगता है कुछ नया देखने को मिलेगा फ्यूचर लीडर्स स्कूल में। साइंस लैब फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जो वो वेरियस एक्सपेरिमेंट्स उनके सिलेबस में प्रोवाइड किए जाते हैं कि वो यहाँ पे कर सकें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनको कंप्यूटर लैब फैसिलिटीज़ मिलेंगी, स्पोकन क्लासेस मिलेंगी, और इस साल हमारा बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है। कुल मिलाकर बहुत बेहतर इस बार होने वाला है। बहुत अच्छी बात है। मैम क्या नाम है आपका? कितना खुश है आप अपने स्टूडेंट्स को लेकर? अच्छा प्रदर्शन किया, तो इसी तरह आपकी मेहनत जारी रहेगी। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? कितना खुश है आप? चलो ठीक है, मैं आपकी तो स्वास्थ्य सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैम के बीच भी खुशी है, बहुत अच्छी बात है। मैम क्या नाम है आपका? आपके बच्चों ने आज बेहतर नाम रोशन किया, आपके संस्थान का, इसका श्रेय उनके पेरेंट्स का कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जाता है, तो ये आपके लिए बहुत गौरव की बात हो जाती है। बेहतर प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी बात है। एक दो स्टाफ और बचे हुए उनसे और बातचीत कर ले, लेकिन लगातार आज सभी परिवार इन्हीं संस्थानों से आपको रूबरू कराएगा, क्योंकि हम वही ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचाते हैं, जिन्होंने एक बेहतर रूप लिया है, बेहतर मिसाल कहीं ना कहीं कायम की है। अब फीमेल स्टाफ कुछ बचे हुए हैं, उनसे और बातचीत करेंगे और उनकी जुबानी भी आपको सुनाएंगे कि बेहतर रूप से लगातार वो निरंतर उनका कार्य है, वो लगातार जारी है, लगातार वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। कितना खुश है सर मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि हमारे जो भी बच्चे हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत अच्छा आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आपका योगदान यूँ ही जारी रहने वाला है। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। कितना खुश है आप? सर मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लिए ये गर्व की बात है, बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे देश का नाम कर। बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, अपने यहाँ के ऑल स्टाफ मेल और फीमेल दोनों से आपको रूबरू कराया। तो फ्यूचर लीडर्स स्कूल में लगातार हमारी मौजूदगी है। कुछ प्राइमरी बच्चे भी यहाँ पर विजिट करने के लिए आए, उन बच्चों के अंदर कितनी उमंग और कितनी खुशी है और क्या कुछ बच्चों का उद्देश्य रहने वाला है, यहाँ आकर क्या कुछ उन्होंने सीखा, क्योंकि यहाँ के मैनेजमेंट ने अलग अलग बच्चों को प्रोत्साहित किया, अलग अलग बच्चों को अपने अपने इंट्रोडक्शंस दिए और बहुत सारी जो सीख की बातें हैं वो भी उनके साथ साझा की गई। पहले सर करेंगे जो इन बच्चों को विजिट कराने लेकर आए हैं, प्राइमरी टीचर हैं। सर क्या नाम है आपका? राकेश सर। राकेश सर, ये बताइए, आज आप प्राइमरी बच्चों को विजिट कराने के लिए लेकर आए, क्या कुछ इसका उद्देश्य रहा? जी सर, पीएमसी योजना के तहत जी एक पेयरिंग एंड शेयरिंग, जी ट्यूनिंग एंड पेयरिंग प्रोग्राम है, इसी साल लॉन्च हुआ है। जी, तो इसमें हमें क्या करना है कि अपने सरकारी स्कूल के बच्चों को प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में जैसे पढ़ाई हो रही है जी, उसके संबंध में बच्चों को जागरूक करना है, दिखाना है कि वहाँ का अनुशासन कैसा है, लाइब्रेरीज कैसे हैं, क्लासरूम कैसे हैं, तो जिससे बच्चे एक्स्ट्रा नॉलेज ग्रहण करें। आपको सर यहाँ के कैसा लगा, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का प्रोफेशनल और यहाँ का जो वातावरण है वो कैसा लगा? मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया और हमने पहली बार अनुमति मांगी और हमें अनुमति मिली जी, क्योंकि प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में बहुत सारे काम होते हैं तो अनुमति मिलना भी कठिन होती है, लेकिन हमें एक बार में अनुमति मिली तो हम बच्चे लेकर यहाँ आए।
आपको ऐसा लगता है कि इस स्कूल ने जो मुकाम हासिल किया है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? आपने 2 शब्दों का भी इस्तेमाल किया था कि बहुत सारे संस्थान होते हैं वो जल्दी अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन आपको एक ही बार में अनुमति दी गई, तो कैसा लगता है कितना ग्राउंड जीरो से जुड़ा हुआ है स्कूल? बहुत पॉजिटिव है हम लोगों के लिए और बहुत अच्छा है। स्कूल में अंदर भी वातावरण अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है और सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है हम लोगों को। सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों से बातचीत करेंगे। ये बच्चे जो हैं वो आज स्कूल में विजिट करने के लिए लेकर आए और सर ने जो कि बताया कि वातावरण को लेकर, यहाँ की सीख को लेकर, यहाँ के एटमॉस्फेयर को लेकर, यहाँ के प्रोफेशनल को लेकर, ताकि वो गुण इन बच्चों के अंदर भी है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं। लेकिन सरकार भी लगातार इन बच्चों पे जागरूक है और लगातार आगे बढ़ाने की बात कर रही है। यहाँ के टीचर्स को तो श्रेय जाता ही जाता है यहाँ पर इन्हें ये मुकाम दिलाने को। बेटा क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलिए, क्या नाम है आपका? बेटा आज जहाँ जिस स्कूल में आए, फ्यूचर लीडर्स स्कूल में आप आए हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा आपको महसूस हो रहा है। तो आप भी जो बच्चे यहाँ पर हैं उन्हीं की तरह ऐसा ही नाम रोशन करेंगे मेहनत और लगन के साथ? बहुत अच्छी बात है। और भी बच्चों से बातचीत करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज होगी। मोहित नाम है आपका। आप फ्यूचर लीडर्स स्कूल में आए, कैसा महसूस कर रहे हैं, कितनी खुशी है और कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी है। तो आगे भी आप इन्हीं बच्चों की तरह इसी तरह नाम रोशन करेंगे। बहुत अच्छी बात है। बच्चों को भी आपने सुना, छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के हैं, लेकिन बच्चों के अंदर एक अलग उमंग, अलग खुशी, अलग जोश है। और बच्चों ने जो यहाँ का वातावरण देखा, फ्यूचर लीडर्स स्कूल का जिसने एक अलग मुकाम हासिल किया है, उन्होंने उस मुकाम को लेकर जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं उन्होंने भी काफ़ी अहम बातें की, साझा की कि यहाँ का वातावरण बहुत मस्त है, बहुत बेहतर है और ऐसा ही वातावरण इन बच्चों का भी होना चाहिए। तो फ्यूचर लीडर्स स्कूल में लगातार हमारी मौजूदगी है। हमने यहाँ का अवार्ड सेरेमनी से आपको रूबरू कराया, उन पेरेंट्स से आपको रूबरू कराया जिनके बच्चों ने आज टॉप किया। इसके अलावा उन मैनेजमेंट, उन स्टाफ से भी आपको रूबरू कराया जिनका सबसे अहम योगदान इस संस्थान के लिए रहा है। अब डायरेक्टर सर विश्व प्रताप सिंह सर हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि सभी के लिए गौरव की बात है, लेकिन जिस शख्सियत ने यहाँ की बुनियाद रखी हो, यहाँ की नींव रखी हो, आज उनके चेहरे पर किस तरह की मुस्कान है, उनके लिए कितनी गौरव की बात है। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका सभी भारत पर। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच। आप जिस तरीके से कवर कर रहे हैं बच्चों के लिए, ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए स्पेशली एक बहुत मोटिवेशन का काम करता है। बिल्कुल लगता है, बच्चों के लिए भी लगता है कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं और सर और स्टाफ जिस तरीके से हमको, टीचर्स हमारे जिस तरीके से हमको मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिस तो सभी बच्चे और पेरेंट भी सर आज फ्यूचर लीडर्स स्कूल के लिए बहुत बड़ा दिन और बहुत अहम दिन, अवार्ड सेरेमनी का ये दिन, चीफ गेस्ट के द्वारा जो हमारे माननीय विधायक जी हरीश शाकी जी के द्वारा बच्चों को सम्मानित किया गया, उन्होंने बच्चों के लिए 4 शब्द भी कहे। इसके अलावा यहाँ के मैनेजमेंट से भी हम रूबरू हुए, उन पेरेंट्स से भी रूबरू हुए जिनकी जुबान पर इस संस्थान का नाम, यहाँ के डायरेक्टर का नाम, मैनेजमेंट का नाम। सर मुझे लगता है आपके लिए तो बहुत अहम खुशी की बात है। इट्स अ रियली वेरी प्राउड मोमेंट। ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। हमारे सभी पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। जब भी मैंने लगभग सभी से बात किया तो पेरेंट्स बहुत खुश थे, बच्चे बहुत खुश हैं, क्योंकि होल ईयर उन्होंने जितना मेहनत करते हैं बच्चे एकेडमिक्स में और बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेट करते हैं, और आज के दिन फिर जब वो अवार्डेड होते हैं, और इसके अलावा बहुत से बच्चे किसी कारणवश आज अवार्डेड नहीं हुए, लेकिन इससे पहले स्पोर्ट्स मीट था, उसमें बड़ी संख्या में मोर देन 750 स्टूडेंट्स को मेडल्स से उनको अवार्डेड किया गया था। स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छे थे। तो मैं पेरेंट्स से आपके थ्रू ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए क्लास में रैंक केवल 3 ही होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रेस्ट बच्चे जो रह गए वो एवरेज हैं या वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो उन पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, उन सभी से ये अपील है कि यदि बच्चा रैंक में नहीं आया है तो उसको प्रोत्साहित करें और बेटर करने के लिए उसको थोड़ा सा मोटिवेट करें। सर मुझे लगता है कि अभी तो सफर की सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ अभी तो बहुत सारे ऐसे ट्रेलर, ऐसे क्लाइमैक्स अभी बाकी हैं जो लोगों के लिए या फिर प्रदेश भर में लोगों को देखना बाकी है कि हमारे स्कूल का बच्चा किस किस मुकाम तक हम अपने बच्चे को पहुंचाते हैं, वो बहुत अहम हो जाता है। जी बिल्कुल। जिस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं, अभी पीछे आपने एक हमारे बच्चों का आपने इंटरव्यू लिया था, तो जिस तरह से बच्चे बात कर रहे थे, बोल रहे थे, और वो डिस्ट्रिक्ट पर अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू वहाँ पहुँच रहे हैं, मंडल पर जाकर उनके लिए बड़े बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि उनको सम्मानित कर रहे हैं, पेरेंट्स को और बच्चों के लिए, तो ये हम सब के लिए प्राउड की बात है। और आने वाले समय में
यानी कि 1 अप्रैल से यानी कि अपकमिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें हम एक नए उत्साह और ऊर्जा के साथ एक बहुत क्वालिटी और एक ज़बरदस्त टीम के साथ में हम फिर बच्चों को और मजबूत और स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए हम काम करने में के लिए अब लग रहे हैं। यानी कि जो मेहनत हमारी लास्ट ईयर की थी तो उसके अकॉर्डिंग आज इस बार बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ एग्जैक्टली, इस बार अब 2025 यानी कि ये सेशन जो आ रहा है हमारा जी, इसमें ज़बरदस्त बदलाव आने वाले हैं। बदलाव से मतलब है हम ये सोचते रहते हैं, मैं अपना अधिकांश समय ये देखता हूँ कि एजुकेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आज के बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे हमको तैयार होना है, स्पेशली हमको तैयार होना है कि बच्चों को कैसे हैंडल करें हम। बिल्कुल सर। मैं बहुत सारे अभी जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, जितने भी कंट्री हैं, अगर हम विजिट नहीं कर पा रहे हैं आज हम गूगल के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू, इनके थ्रू हर देश में क्या चल रहा है, कैसे वो आगे निकल रहे हैं, ये सब कुछ हम जान सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो हम क्या बेटर करें अपने बच्चों के लिए, इस पर मेरा बहुत स्टडी कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ और उसी तरीके से जितना सक्षम हूँ उतना हर भरसक अपना प्रयास कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें हमारे बच्चों को मिलें। और हमारे बच्चे केवल डिस्ट्रिक्ट बदायूं की मैं बात नहीं सोचता, अब मैं सोच रहा हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कैसे बच्चों को हम पहुंचा पाएं और कैसे हमारे बच्चे दुनिया में छा जाएं। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात कर रहा हूँ और ये संभव होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किए अपने संस्थान को लेकर और बेहतर रूप लगातार डायरेक्टर सर के द्वारा अपने संस्थान को दिया जा रहा है। बहुत अहम हो जाता है, प्रोफेशनल स्टाफ है, लेकिन सर ने जिन जिन बातों का जिक्र किया, अब जो अपकमिंग सेशन अब 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अहम हो जाएगा। इस सेशन में आपको बहुत कुछ अलग तस्वीरें, बहुत कुछ अलग नज़ारा उन छात्र छात्राओं के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज का नज़ारा तो आपने देख ही लिया, कितना अलग अद्भुत दृश्य आपको हमने दिखाया और लगातार अब नए नए स्टेशन में अद्भुत दृश्य ही आपको नजर आने वाले हैं। अगला इंटरव्यू और अगला इसी तरह का कार्यक्रम अगले संस्थानों को लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत। भारत माता की